ہو سکتا. زندہ باد پاکستان زندہ باد. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج دو تین اہم موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے نواز شریف کی وطن واپسی. نواز شریف کی وطن واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اتنا بڑا معمہ بن چکا ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کا کہ کوئی سرا اس کا ہاتھ نہیں آ رہا. نواز شریف پاکستان آئیں گے نہیں آئیں گے یا لائے جائیں گے، ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، آخر ہو کیا رہا ہے، یہ ساری اتنی کنفیوژن ہے. اور اس کنفیوژن کا اگر بالکل 100% درست بھی بات کی جائے تو سارے کا سارا جو مرکز ہے مسلم لیگ نون کے اپنے اندر کے رہنما ہیں. ایک رہنما کہتے ہیں کہ جی نواز شریف آ رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں آ سکتے، کب آئیں گے. اس حوالے سے بھی نون لیگ کے اپنے اندر کنفیوژن ہے. کیا یہ صرف ایک سیاسی بیان تھا جس کا مقصد کچھ سیاسی فوائد، خاص طور پہ اس وقت جو ایک انتخابی لہر لوکل گورنمنٹ کی چل پڑی ہے اور عام انتخابات کے لیے جس طرح سب لوگ آہستہ آہستہ اڑان بھرنے کے بارے میں پیش بندی، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اس کا نتیجہ ہے یا واقعی نواز شریف کی طرف سے پاکستان واپسی کوئی ایک سنجیدہ تھاٹ پروسیس ہے؟ اس پہ آج سوال کریں گے. دوسرا، حکومت نے کہہ دیا کہ نواز شریف آئیں گے نہیں بلکہ لائے جائیں گے. پچھلے 1.5 سال سے کم از کم جب سے نواز شریف بیماری کا علاج کروانے کے لیے پاکستان سے باہر گئے ہیں تو اس وقت سے اب تک تو حکومت پاکستان تحریک انصاف کی نواز شریف کو پاکستان واپس نہیں لا سکی. تو اب کس بنیاد پہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ آئیں گے نہیں بلکہ لائے جائیں گے؟ اور صرف یہی دعویٰ نہیں کیا، حکومت کے ایک اور بڑے اہم وزیر نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ آصف زرداری بھی جیل جائیں گے، حکومت نہیں گرا سکتے. تو آخر پاکستان تحریک انصاف کے اس رینیوڈ کانفیڈنس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے، چند ہی ہفتے پہلے، خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کو جس طرح سے شکست ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. بٹ اس کے باوجود شیخ رشید کہتے ہیں ہمارے اوپر سے ہاتھ ابھی تک اٹھا نہیں. تو یہ جو رینیوڈ کانفیڈنس ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اور کل قومی اسمبلی میں منی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے. حکومت پر امید ہے بلکہ پر یقین ہے کہ اس منی بجٹ کو پاس کروا لے گی. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اتحادیوں سے رابطے بھی کیے ہیں، حکومت کے اتحادیوں سے اپوزیشن نے. تو کیا اپوزیشن کی دال گل سکے گی یا جس طرح سے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو نمبر گیم کی برتری حاصل ہے سو وہ کل آرام سے بآسانی بجٹ پاس کروا لے گی؟ یہ بھی اہم سوالات ہیں. اس کے علاوہ کل قومی سلامتی پالیسی ملک کی پہلی، اس کی جو ہے منظوری دی گئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں. کل ایک بار پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے اسپیشل، جس میں قومی سلامتی پالیسی کا ملک کی پہلی اس کی باقاعدہ منظوری بھی دی جائے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو پارلیمان کے سامنے بحث میں کیوں نہیں لایا جا رہا؟ اور اگر پارلیمان کا اعتماد اس کو حاصل نہیں، آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کل کسی اور کی گورنمنٹ ہو سکتی ہے، نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے، سو اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کا اعتماد پارلیمان کے ذریعے حاصل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ وہ چند ایک اہم سوالات ہیں جن کے جواب لینے کی آج پروگرام میں کوشش کریں گے. پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کے لیے اوپن کرتے ہیں. میرے پاس بہت زبردست، بہت قابل احترام شخصیات تینوں سیاسی جماعتوں سے موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، سینیٹر ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، وہ جوائن کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی سینئر سرکردہ مرکزی رہنما ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں جناب رانا تنویر حسین صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی سینئر مرکزی سرکردہ رہنما سینیٹر ہیں جناب سسی پلیجو صاحبہ، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. رانا تنویر حسین صاحب، نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ آ رہے ہیں یا لائے جائیں گے؟ آئیں گے تو کب آئیں گے؟ دسمبر میں آئیں گے؟ دسمبر تو اب ختم ہو چکا، جنوری میں آئیں گے، فروری میں آئیں گے، مارچ کے مہنگائی مارچ سے پہلے آئیں گے؟ آخر مسلم لیگ نون کے اندر اتنی کنفیوژن کیوں ہے رانا صاحب؟ غریدہ تھینک یو ویری مچ. کوئی کنفیوژن نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا دل ہمیشہ پاکستان میں پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہی جلد سے جلد وہ پاکستان آئے. نمبر ایک تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں، جتنی جلد ان کا دل ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے میں واپس جاؤں. ان کے آنے کی جو معاملات ہیں وہ ان کی صحت کے ساتھ ان کا تعلق ہے. دوسرا جو سچویشن ہے ساری اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، جو پولیٹیکل سچویشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ انہیں نے کرنا ہے. لیکن یہ جو آپ نے ایک اچھا لفظ بولا ہے کہ کیا تھاٹ پروسیس جو ہے ان کے آنے کا
उस पर कोई ऐसी चीज़ है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल यकीनी तौर पे ज़ेर गौर चीज़ हैं और उस पर वो सोच विचार हो रही है। लेकिन फाइनल फैसला ये क्या वो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उन्होंने खुद ही बनाना है, उसको वही अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन यकीनी तौर पे आने से पहले वो पार्टी को इत्मीनान में लेंगे, और अभी तक पार्टी के प्लेटफॉर्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसको हम कह सकें कि कोई डिस्कशन के बाद या कोई फैसला साजी के मरले पे है। लेकिन अभी तक जो भी है वो चीज़ उन्हीं के पास है। लेकिन एक बात ज़रूर वो करते हैं कि मैं जल्द से जल्द वापस पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। दूसरी जो इन्होंने नई बात शुरू कर दी है इस बुखलाहट के बाद, गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं या तर्जमान हैं, वो आप इनने देखा कि वो काफ़ी 2-3 हफ्तों से परेशान हैं। इस जो सोच चल रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, या एक मीडिया पे या हमारी तरफ से भी ये बात है कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आएंगे, तो मेरा ख्याल है इसके उन्होंने काउंटर करने के लिए एक नई फवाद चौधरी के जरिए बयान दिया है कि वो आएंगे नहीं, हम लाएंगे। हाँ। उनके पीछे जो है चीज, वो मैं समझता हूँ यही है, हम कह सकते हैं कि वो समझते हैं कि हम इसको उसमें कन्वर्ट कर दें। जब वो आए तो हम कहें जी आए नहीं, हम लाए हैं। तो ये पॉलिटिकल मेरा हाल एक राना साहब कता कलामे की माजरत, लेकिन हुकूमत तो इस बुनियाद पे यह दावा कर रही है, वो कह रही है कि जी पासपोर्ट की चूंकि मुद्दत खत्म हो गई, वीजे की मुद्दत खत्म हो गई माजरत के साथ, तो इसलिए जो है वहां से डिपोर्ट किए जा रहे हैं बरतानिया से। इसमें कितनी सच्चाई है कि वीजे में एक्सटेंशन नहीं मिल रही है नवाज शरीफ को, इसलिए वो वापस आ रहे हैं यूके, या वहां से डिपोर्ट करवाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए ये बात दुरुस्त है कि उनकी वीजे की जो टाइम था वो खत्म हो गया, लेकिन उसके लिए अपील की हुई है। वो अली जफर साहब बैठे हुए हैं, ये भी उस पर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ भी वो अपील टेकअप नहीं हुई। जब भी होगी तो उस पर फैसला होगा। लेकिन सरे दस्त डिपोर्ट वाली बात या इस किस्म की कोई ऐसी जो वो एक नजर आए कोई नियर फ्यूचर में, ऐसी बात नहीं है। ये जो बात वो कर रहे हैं बिल्कुल वही मैं समझता हूँ एक पोलिटिकल माइलेज के लिए कि हम उसको उसमें बदल दें, उनके आने को। जो एक हम बात करते हैं कि वो आ रहे हैं, तो वो जो एक पॉलिटिकल क्रेडिट जाता है कि वो इस साल में पहले भी वो आए थे, आपको याद है कन्विक्शन हुई थी, तो वो अपनी बेटी के साथ, मरियम बीबी के साथ आए और सीधा जेल चले गए। और अब भी ये समझते हैं अगर वो आए तो उसको हम इस तरह रंग दें पॉलिटिकली कि लोग समझे कि नहीं जी वो लाए गए हैं। लेकिन ये सारी चीज लेकिन राना साहब, यानी कि इसका मतलब ये हुआ रिपोर्ट करने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिरे से कोई चीज बिल्कुल किसी सतह पे भी ऐसी बात नहीं है। ठीक, लेकिन राना साहब लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं बैरिस्टर अली जफर और सेंटर सचिव प्लेजो की तरफ मूव करती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी में, फरवरी में या मार्च में फिलहाल नवाज शरीफ की अनकरीब मुस्तकबिल में वतन वापसी का कोई चांस नहीं है। तो फिर अयाज सादिक जो बात कर रहे थे, जावेद लतीफ जो बात करते हैं, या दीगर रहनुमा जो बात कर रहे थे, फिर आपके अंदर से ये नून लीग के अंदर से ये बात कहां से जनरेट हो गई कि नवाज शरीफ अनकरीब आ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या जनवरी में, फरवरी में, मार्च में नवाज शरीफ यानी कि पाकिस्तान नहीं आ रहे? देखिए मैं जो इसका जवाब है वो तो वही दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो क्योंकि खुद बड़े अहम लोग हैं और उनको बहुत ज्यादा पता होता है। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि उनका शायद ये अंदाजा हो कि क्योंकि मियां साहब ये बात करते हैं कि मैंने पाकिस्तान जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ, तो शायद उससे उनको अंदाजा हो। लेकिन अभी तक पार्टी की सतह पे कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं आपको बिल्कुल ये कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि वो कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ पार्टी की सतह पे। जब फैसला होगा तो यकीनी तौर पे पार्टी की सतह पे भी ये बात आएगी, क्योंकि उनका आना कोई इतनी छोटी बात नहीं है। जब वो आएंगे तो उनका इस्तकबाल या उनके आने का जो प्रोग्राम बनेगा वो पार्टी की सतह पे भी होगा। ठीक, और जो उनका इस्तकबाल होगा वो जब भी आएंगे उस वक्त फिर आपकी पार्टी के लोग एयरपोर्ट तक तो पहुंच जाएंगे ना, कम से कम? पहले भी पहुंचे थे, अब भी पहुंचे थे। अगर पहले इनको ये है कि नहीं पहुंचे थे, ये जो आपने एक किया हुआ इंप्रेशन दिया हुआ, तो फिर वो अंदर से ये उनको उठा के वो डाला जेल ना लेके जाते। मैं समझता हूँ ये चीजें ऐसी हैं, ये कैसी करते हैं थोड़ा सा प्रोपेगेंडा। उस वक्त लोग सारी सड़कें भरी हुई थी, मैं खुद भी उधर ही था,
तो मैं समझता हूँ ये प्रोपेगेंडा है। जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा इस दफा। हम भी वही थे, सड़कों पर ही थे, कवरेज करते। बैरिस्टर साहब मुस्कुराए आपकी इस बात पे। बैरिस्टर अली जफर साहब, नवाज शरीफ आएंगे नहीं, लाए जाएंगे। हुकूमत पिछले कम से कम 1.5 साल से तो कामयाब नहीं हो सकी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए। उससे पहले नून लीग का जो बयानिया है कि पहले भी नवाज शरीफ खुद ही आए थे, अपनी मर्जी से फैसला करके जेल गए थे, हुकूमत उनको लेकर नहीं आई थी। तो ये फरमाइएगा कि ये फिर किस बुनियाद पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ दावा कर रही है कि जी आएंगे नहीं बल्कि लाए जाएंगे? और डिपोर्ट के हवाले से कानूनी जो रहनुमाई है वो भी आप कर दीजिए। रान तनवीर ने आपकी तरफ, आपकी कोर्ट में बॉल डाल दी कि जी डिपोर्ट का था, फिलहाल वहां मामला ही नहीं है। जी देखें, सबसे पहले तो चाहे वो खुद आए या उनको लाया जाए, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको वापस आना चाहिए ताकि अपनी ट्रायल फेस करें, अपना पॉलिटिक्स करें, अपनी सियासत करें, जो भी है पाकिस्तान बैठ के करें। ये जो हमारा एक थीम बन गई है कि हमारे पॉलिटिशियंस बाहर बैठ जाते हैं और बाहर से बयानबाजी करते हैं या सियासत करते हैं, ये महल खत्म होनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि हुकूमत की ख्वाहिश क्या है। हुकूमत की ख्वाहिश तो बिल्कुल ये है और कोशिश भी ये है कि वो वापस आए, लेकिन चूंकि हमारी अभी तक नाकामी है, यकीनी तौर पे अभी तक हम उनको नहीं ला सके, और उसकी वजह यह है कि हमारी बरतानी हुकूमत के साथ कोई मुआहदा नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कन्वेंशन नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है जिसके तहत हम उनको ला सकें। अब ये भी हकीकत है कि उस वक्त उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और वीजा उनका एक तरह से कैंसिल हो गया। उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक एक प्रोसेस होता है जब आप अपील फाइल करते हैं उसके खिलाफ, और वो उनका अभी कार्रवाई चल रही है। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, हमने कोशिश जरूर की, लेकिन अभी तक यकीनी तौर पे ये एक हकीकत है कि हम उसमें कामयाब नहीं हुए। तो अब वो किस तरह आते हैं, क्या वो हुकूमत की काविश से आते हैं, वो डिपोर्ट होते हैं, या वो आज खुद आते हैं, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज यकीन है, यकीनन ये हकीकत है ये भी कि कंफ्यूजन जरूर है इस वक्त पीएमएलएन के कैंप में, बिकॉज जब आप बात करते हैं उनसे और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करें या ऑन द रिकॉर्ड भी बात करें, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो आ रहे हैं, कुछ कहते हैं वो नहीं आ रहे, कुछ कहते हैं वो नहीं आएंगे जब तक इलेक्शन नहीं होगा। सो उधर एक बड़ी अजीबोगरीब कंफ्यूजन है, और शायद उसकी वजह ये है कि पीएमएलएन में एक तरह से एक इंटरनल एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लीडरशिप का। कौन सा कैंप और कौन से कैंप की पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसीज भी दोनों कैंप्स की मेरी नजर में थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ हैं। तो कौन सी पॉलिसी और कौन सा कैंप कामयाब होता है, उसके ऊपर भी अभी एक डिबेट चल रही है इंटरनली। और आप देख रहे हैं कि वो जो ग्रुप्स बन गए हैं दो, एक ग्रुप कहता है उनको अब नवाज शरीफ साहब को आ जाना चाहिए वापस ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करें, एक ग्रुप शायद उनको नहीं अभी लाना चाहता, दूसरा ये कि हुकूमत भी उनको चाहती है कि वो आए, लेकिन वो शायद इसलिए नहीं आना चाहते कि वो आएंगे तो फिर उनको एक तरह से जेल में जाना पड़ जाएगा क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं। तो ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन है। तो हकीकत तो है, कंफ्यूजन की वजह क्या है वो पता नहीं, लेकिन कंफ्यूजन जरूर है। हुकूमत की ये भी ख्वाहिश होगी अल्टीमेटली, हम बार बार लिख भी रहे हैं बरतानी हुकूमत को, हम एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं, उनको मिसालें दे रहे हैं कि देखें आपने उसको डिपोर्ट कर दिया, उसको फलां शख्स को फलां के कहने पे क्या कर दिया, लेकिन आपने इनको जो एक कन्विक्टेड हैं, कॉन्विक्ट हैं, उनको आप नहीं वापस भेज रहे। तो ये सारे एक डिप्लोमेटिक सतह पे तो जरूर कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया कि कामयाबी नहीं हुई उसमें। तो देखना यह है कि अब किस तरह आएंगे वो, अगर आए कभी। तो बैरिस्टर साहब यानी कि आप ये तस्लीम करेंगे कि फिलहाल नवाज शरीफ को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही बयानिया है कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया जा रहा है। इसी की बुनियाद पे फवाद चौधरी ने कहा कि जी वो आए नहीं बल्कि लाई जाएंगे। तो यानी कि आप तस्लीम करते हैं कि फिलहाल नवाज शरीफ डिपोर्ट नहीं हो रहे यूके से? ये देखें, जो अगर तो उनके खिलाफ कोई डिपोर्टेशन ऑर्डर होता तो वो डिपोर्ट हो चुके होते, क्योंकि बरतानी हुकूमत का एक प्रोसेस है डिपोर्टेशन का। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कोई ऑर्डर किया गया है। अगर होता तो जरूर प्रेस में भी आता, कहीं पब्लिकेशन में आता। लेकिन मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब का मकसद ये कहने का था कि हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि जो हमारी कोशिश है हुकूमत की उनको वापस लाने की, वो किसी ना किसी स्टेज पे कामयाब होगी।
ठीक है। सेंटर से पलीजो साहिबा, एक तरफ तो नवाज शरीफ की वापसी के मामले ने हुकूमत को अंडर प्रेशर कर दिया, फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी जिस तरह से फ्रंट फुट पे आके, बावजूद इसके कि पिछले कुछ अरसे से वो बिल्कुल खामोशी की सियासत गुजार रहे थे, लेकिन एकदम से फ्रंट फुट पे आए हैं और मुसलसल हुकूमत के ऊपर तीर अंदाजी उनकी, और खासतौर पर 27 दिसंबर वाला जलसा, जिसके बाद हुकूमत ने कह दिया कि जी उनको तो हुकूमत गिराने के बजाय जेल में होना चाहिए। तो क्या आप समझती हैं कि हुकूमत अब इस लाइंस पे सोच रही है कि आसिफ अली जरदारी का नेक्स्ट स्टॉप जो है वो जेल होना चाहिए एंड नॉट द नेक्स्ट गवर्नमेंट? शुक्रिया गरीदा। किस हुकूमत को जो है लाउड एंड जो एक शोर करने वाली अपोजिशन पसंद होती है, और आसिफ अली जरदारी साहब बहुत बड़ा तजुर्बा रखते हैं जेल रेल का, 11 साल से भी ज्यादा उन्होंने जेल गुजारी है, अपने न किए हुए गुनाहों की सजा। लोग जेल में रहना पसंद नहीं करते बहुत सारे, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये एक रहा है बैकग्राउंड कि जब मज़ाहमत में होते हैं तो फिर चीजों को झेलना भी जानते हैं और फेस भी करते हैं, और भले चाहे फांसी भी चढ़ना पड़े लेकिन झुकते नहीं हैं। और अभी भी मेरे ख्याल में हमारे खिलाफ एहतसाब के नाम पर एक मुसलसल कंटिन्यूस जो विक्टिमाइजेशन है, जिसको पीटीआई की हुकूमत ने एक टूल की तरह अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया हुआ है। देखें, अपोजिशन का हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, जमहूरी हक भी है कि वो जरूर, वो कोई बताशे तो बांटने नहीं आती, तो वो जरूर जो भी एक फेल्योर है गवर्नमेंट का किसी पॉलिसी का, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बैरिस्टर अली जफर साहब जैसे लोग भी पीटीआई के पास इतने नहीं हैं, फिर भी ऐसे लोग जो है कुछ न कुछ समझबूझ वाले हैं, लेकिन वहां जो वैसे देखते हैं काबीना में भी तो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म पे जो भरे हुए हैं, और नफरत का लावा हर वक्त जो है ना, क्योंकि खुद उनको अपनी नाअहलियत को एक नीचे करना होता है। खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया, खुद उनके लोगों ने कहा ये महंगाई और हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से इलेक्शन हारे हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब हमारे रहनुमा हैं पार्टी के सीनियर, और कलेक्टिव विजडम के साथ चलते हैं, और हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, हमारी कोशिश होती है जो भी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी हो हमारी अपने अपोजिशन के दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनके साथ हो रही है, इस वजह से अच्छी कामयाबियां भी मिली हैं। लेकिन पीटीआई ने बेतौकीरी में पार्लियामेंट की कोई कसर तो नहीं छोड़ी। बहरहाल बीमारी के बावजूद उनपे केसेस भी हैं आसिफ अली जरदारी साहब पर, जब भी लेकिन बेहतर होते हैं जरूर वो पार्टिसिपेट करते हैं, हाउस में भी, हाउस के बाहर भी जो स्ट्रेटजी होती है, जो हमारी की डिसीजंस होते हैं तो वो उसमें शामिल रहते हैं। कल भी आपने देखा कि वो मौका जैसे ही मिला, उनकी सेहत ने भी जैसी इजाजत दी, वो जरूर आए गड़ी खुदा बख्श में, मुख्तसरी सही उन्होंने खिताब किया। तो ये कोई भी अचंभे की बात नहीं है, ये हमारा राइट है, हम बात भी करेंगे। और इस हुकूमत की जो नाकामियां हैं मुआशी से लेकर पॉलिटिकल एक पोलराइजेशन की तरफ जो लेके जाना, हम तो उसको कम कर रहे हैं। हम तो डिमोरलाइजेशन जो लोगों की हो गई है, जो एक पिसे हुए हैं महंगाई में भी, हम तो चाहते हैं मौशत बेहतर हो, पाकिस्तान का इस्तेकाम हो, पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक हो, और अपोजिशन को जो स्पेस, या आम लोगों को भी हम देखते हैं कि सोसाइटी में भी वो स्पेस जो है वो पीटीआई दूसरे अजीब से नैरो माइंडेड लोगों के साथ करती है। प्रोग्रेसिव जमात में नहीं, अली जफर साहब जितने कितने लोग होंगे मुझे बताएं आप। तो पीटीआई जो है ना ये दोगलेपन की ज्यादा शिकार है, और हमारा फर्ज है कि हम जो है जरूर उन पर तनकीद करें, और हाँ अपनी फिर ऑप्शंस भी दें, स्ट्रेटजी को और ज्यादा क्लियर करके जो है वो बढ़े आगे। सेंटर साहिबा, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, आपने मईशत की बात की है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कल मिनी बजट कौमी असेंबली में पेश किया जा रहा है, हुकूमत पेश करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या है, ऑपोजिशन रुकवाने में, नाकाम करवाने में मिनी बजट को पास कामयाब हो सकेगी या नहीं, ये अहम सवाल करेंगे। और इस मिनी बजट का फिर आगे इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि चंद महीनों बाद फिर एक प्रॉपर बजट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 5वां और आखिरी बजट आ जाएगा। इस सब पे सवाल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं राना तनवीर हुसैन साहब, सेंटर सस्सी पलेजो साहिबा और सेंटर बैरिस्टर अली जफर साहब। अली जफर साहब, मिनी बजट के हवाले से सवाल आपसे। कल आप लोग प्रेजेंट करने जा रहे हैं, कौमी असेंबली में पास करवा लेंगे? नंबर गेम आप लोगों के पास पूरी है। अपोजिशन ने आज आपके इत्तेहादियों से भी बड़े राब्ते किए हैं, और कहां से राब्ते हो रहे हैं आपके लोगों को, और कहां से फोन कॉल्स आ रहे हैं? अली जफर साहब जी देखिए, मिनी बजट जो इसको आप कहते हैं, जिसमें जब भी कोई फाइनेंशियल तब्दीली की जाए ओरिजिनल बजट में, उसको फिर एक मिनी बजट कहा जाता है। एक डिबेट हुई और डिबेट में आइन को देखा गया कि किस तरीके से मिनी बजट आना चाहिए। दो तरीके सामने नजर आए। एक तो था कि ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए ताकि पार्लियामेंट में जाना ही ना पड़े। दूसरा था कि आपको नेशनल असेंबली में ही जाना पड़ता है। आइन में थोड़ा अबहम है, लेकिन फिर फैसला यही हुआ कि आइन के मुताबिक इसको नेशनल असेंबली में जाना चाहिए, इसलिए हम नेशनल असेंबली में जाएंगे। अब जहां तक हमारा कॉन्फिडेंस कितना है नंबर्स के मुताबिक, अभी तक आप देखें कि जब का 3.5 साल इलेक्शन को हो गए हैं तकरीबन, जितने भी बिल्स हुकूमत ने नेशनल असेंबली में पेश किए हैं वो सारे के सारे पास हुए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप ये माजी को देखेंगे तो मुस्तकबिल में भी जितने बिल आएंगे वो पास होंगे। सर ऑपोजिशन तो अभी इल्जाम लगाती है कि जो आपका ईवीएम का बिल था उस पर फोन कॉल्स कर करके इकट्ठा किया गया, तो अभी भी कोई फोन कॉल्स वगैरह तो नहीं आ रही हैं अली जफर साहब? जी देखिए, जहां तक फोन कॉल्स का है, मैं एक दो प्रोग्राम उस जमाने में गया था जिसपे ये जिक्र किया गया था कि फोन कॉल करके बुलाया गया है। मैं अपनी बात तो कर सकता हूं, बाकियों का मुझे पता नहीं। लेकिन जितने लोगों से मैंने बात की उसके बारे में, और जो मेरी अपनी जाती शख्सियत का ताल्लुक है, मुझे भी कॉल्स नहीं आए, कभी किसी किस्म की कॉल नहीं आई। और जहां तक दूसरे लोगों से बात की, उन्होंने भी किसी ने मुझे किसी तरीके से एडमिट नहीं किया कि कोई कॉल आई। तो ये एक र्यूमर जरूर होगा, लेकिन र्यूमर्स का फिर जवाब आप दे नहीं सकते जब तक कोई सामने आके ये ना कहे कि हाँ जी मुझे कॉल आई थी। फिर उनको अगर कॉल आई थी तो फिर वो जवाब देंगे कि उन्होंने क्यों नहीं इस चीज को स्पीकर या चेयरमैन सेनेट के को रेफर किया कि इस तरह बात हुई है, उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश किया गया उस कॉल का। लेकिन ये र्यूमर जब इस तरह की बात हो तो उसका फिर जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी हद तक तो जरूर कह सकता हूँ कि ऐसी कोई कॉल नहीं आई। ठीक, राना तनवीर साहब आपने सुन लिया अली जफर साहब का जवाब, बड़ा दलाइल के साथ। जाहिर है वो एक बैरिस्टर हैं, लॉयर है, उनका बड़ा दलाइल के साथ जवाब है। इसके मुकाबले पे राना साहब अली जफर साहब शरीफ आदमी है, कहते मैं अपनी जात तक कह सकता हूँ, दूसरों का दफा भी कर रहे हैं कि दूसरे किसी ने नहीं कहा। नंबर 1 जो मिनी बजट की बात की है, पहले तो मैं उस पर बात आऊंगा, फिर ये भी बताऊंगा फोन कॉल्स का भी। मिनी बजट देखें, मिनी बजट इज द वर्स्ट थिंग जो आती है। 1 साल होता है जिसका तखमीना लगाया जाता है, लेकिन मैं बताऊं कि आज बड़ा अनफॉर्चुनेटली मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि जो नेशनल असम्बली है उसके जो 2 काम है, एक मनी बिल वाला और एक टू इलेक्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, वो जिस अंदाज से ये मनी बिल को लाते हैं या मनी बिल में जो क्लॉजेस डालते हैं उसमें जो गए बगैर मिनी बजट सारा साल आता रहता है। जब ये प्राइसेस बिजली की बढ़ाते हैं या दूसरे टैक्सेस लेवीज वगैरह इधर उधर करते हैं, वो भी मिनी बजट ही होता है। लेकिन ये जो मनी बिल में क्लॉजेस डालते हैं वो ही मैं समझता हूँ नहीं, एक पैसा भी अगर इधर उधर करना हो टैक्सेस में या खर्च अखराजात में, वो नेशनल असेंबली के पास आना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो हो रहा है ये दुनिया में किसी जगह नहीं हो रहा। ये मनी बिल के साथ जहाँ पे डेमोक्रेटिक या ये सिस्टम है, सारे जो लोगों के इलेक्टेड लोग बैठे होते हैं। लेकिन अब ओवर एंड अबव जो मिनी बजट अब जिसको नाम ये दे रहे हैं, इसका मतलब कोई तूफान एक खड़ा होने वाला है। छोटी मोटी तो ये रोज टैक्सेशन नहीं कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी जो ये कर रहे हैं रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, ये इधर उधर करते रहते हैं, वो नहीं कर सकते ये। लेकिन इन्होंने मनी बिल में डाला होता है। मनी बिल में तो खुदा का वास्ता ये ऐसी चीजें डाल सकते हैं जिसको आप समझें कि जिनका तल्लुक भी नहीं होता मनी बिल के साथ। तो मैं समझता हूँ ये जो मनी बिल है जिनको ये ला रहे हैं, मिनी बजट है, ये मिनी बजट जो है ये जो ला रहे हैं ये खौफनाक किस्म की चीज है।
اب یہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. بھائی کھل کے بات کریں, یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہ کریں کہ جی ہاں ان کا تو لوگوں پہ اثر نہیں پڑے گا. کہیں وہ بہتر ہو جو عوام کو یہ کہیں کہ جی یہ بالکل یہ ایشو ہے, اس سے ہمیں مشکلات آئیں گی, لیکن یہ ہمیں کرنا پڑے گا. اور بات بتائیں کہ آئی ایم ایف ہے اور اس کے پاس ہم گئے ہیں, ہمارے آگے نہیں چلتا, ہمیں پیسے چاہیے, ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ خراب ہو رہا ہے, وہ ڈیفیسٹ جو ہے جس کا یہ بہت بڑا لیتے تھے کریڈٹ کے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بڑا سرپلس ہو رہا ہے, بہت اس میں بہتری آ رہی ہے. آج یہی کرنٹ اکاؤنٹ خریدا, جس طرح انپریسیڈنٹڈ جو وہ نیگیٹو ہوا ہے, ڈیفیسٹ ہوا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے آپ پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. لیکن رانا صاحب کل تو حکومت پریزنٹ کرنے جا رہی ہے, تو اپوزیشن رکوانے میں کامیاب ہو سکے گی یا آپ لوگ بس خالی خولی شور شرابہ کریں گے؟ بس روکیں گے, لیکن یہ جو بات کرنا ہم انشاءاللہ روکیں گے, کیونکہ وہ کام جو ہم 3 سال سے ایک ایجیٹیٹ کر رہے ہیں کہ عوام کا جینا مشکل ہے, 2 وقت کی روٹی نہیں ان کو مل رہی, اس آنے سے جو آخری ان کی سانس ہے وہ بھی یہ چھیننا چاہتے ہیں, بند کرنا چاہتے ہیں سانس عوام کی. لیکن سر کیسے روکیں گے رانا صاحب, کیسے روکیں گے؟ نمبر تو آپ کے پاس ہے نہیں, نمبر تو گورنمنٹ کے پاس ہے. یہ بتائیں کہ ابھی پچھلے 7 دن سے یا پچھلے بھی یہ اپنا کورم پورا نہیں کر سکے. یہ جو بات کرتے ہیں جتنے بھی الیکٹڈ میجورٹی آف الیکٹڈ ایم این ایز, ان کے دل ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کی پالیسیز کے ساتھ نہیں ہے, ان کی لیجسلیشن جو طریقہ کار ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. میں آپ کو بالکل یقین سے بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ ہمیں بتاتا ہے جو پیچھے آپ نے بات کی, بڑی صحیح بات کی ہے آپ نے, جو ای وی ایم والا انہیں پاس کرایا وہ جوائنٹ سٹنگ کرنی پڑی, اور اس میں فون کالز گئیں. میرے خود اپنے دوست ہیں, میرے کئی اتنے قریبی دوست ہیں کیونکہ پرانے ہمارے تعلقات بہت زیادہ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو فون کالز آئی ہیں, اور انہوں نے بہت سارا یہ علی ظفر صاحب کو نہیں یا ان کو نہیں بتاتے ہوں گے, جو اسپیکر صاحب کی بات کرتے ہیں کیوں نہ, یہ تو کرتے ہیں وہ اس سسٹم کی بات جہاں بہت ہی ایک اسٹیبلش پاورفل سسٹم ہوتا ہے, ڈیموکریٹک الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اسپیکر کے پاس جائیں, اسپیکر سے پاس جائیں. اسپیکر صاحب کو تو خود کال فون آتی ہیں, میں بتا رہا ہوں. یہ میں اس سے سر یہ بہت بڑی بات, رانا صاحب بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی فون کالز آتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو, میں مطلب اس سے چھوڑیں اس بات کو, وہ کہیں پھر وہ کھل جائے گی بات کہ کس طرح آتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے. رانا صاحب کھول دیں یہ بات, یہ تو بہت بڑی بات ہے, یہ تو ملک کے آئینی اور جمہوری ہے نا کہ فون کال آتے ہیں, ان کو کیوں نہیں آتے؟ اب پوچھے نا یہ ایجنڈا کس طرح بناتے ہیں, کون بناتا ہے ایجنڈا, وہاں کون آ کے چیزیں کر رہا ہوتا ہے ساری پارلیمنٹ کی, لیکن یہ اس کو ساری دنیا کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں نہ کریں. وہ کیوں ان کے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ ابھی ہاتھ ہم سے اوپر ہاتھ اٹھا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ہے نا کہ ہاتھ ہے. وہ کہتا نہیں جی یہ ثابت کرنے کی کوشش, کبھی یہ کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں, کیوں میسج دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, کیوں بتانا چاہتے ہیں, ایک پیج کا نام ہی لائیں, کہیں گے ہم گورنمنٹ میں ہیں اور سب ادارے ہمارے پیچھے ہیں. وہ کہیں گے نہیں, کانسٹیٹیوشنلی ادارے سب گورنمنٹ کے ادارے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم ایک پیج پہ ہیں. آج کہتے ہیں ہاتھ ابھی اٹھا نہیں ہے, ہمارے اوپر ہاتھ ہے. تو یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ایم این ایز کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے. یہ کوشچن آتا ہے کہ جی کس طرح پتا چلے کہ ہاتھ اٹھا ہے یا شیخ شی صاحب سچ کہہ رہے ہیں. تو وہ میرا وشواس سے پتا چل جاتا ہے, جو فون کال بند ہو جائیں گی تو پھر ظاہر پتہ چل جائے گا کہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے. ران صاحب اس پہ میں آگے چل کے آپ سے مزید سوال بھی کروں گی, بٹ سینٹر سسی پلیجو صاحبہ پہلے سوال کے جواب میں آپ جو معیشت کی صورتحال کا ذکر کر رہی تھیں, تو کل منی بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی, آپ لوگ اگر جوائنٹ اسٹریٹجی کرتے تو پاسبل تھا کہ آپ لوگ حکومت کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے. اتحادی ناراض ہیں, کاف لیگ والے ناراض ہیں, جی ڈی اے والے معیشت کی صورتحال سے ناراض ہیں, کے پی کا الیکشن اس کا نتائج ابھی سب کچھ سامنے ہے, لیکن کوئی ایسی ایفرٹ اپوزیشن کی طرف سے لیڈ بائی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی جوائنٹ نظر نہیں آ رہی ہے اس دفعہ منی بجٹ کے خلاف. کم از کم یہ منی بجٹ میں منی بجٹ ہے. ایون جو بیچ میں پیٹرولیم کی لیوی اور اس کے حوالے سے تو بجٹ کے حوالے جو پہلی خدشات کا اظہار ہم نے کیا, لیکن آپ نے پھر دیکھا ایک مہینے میں 4 مرتبہ بھی پرائسز بڑھی, بجلی فی یونٹ بھی کتنی مرتبہ بڑھ چکی ہے. عالمی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں وہاں دوسری بات ہوتی. چودھری سرور خود جا کر انہوں نے عالم آشکار انٹرنیشنلی انہوں نے کہہ دیا سب کو کہ بھائی یہ سب کچھ گروی سمجھو کہ ہو چکا ہے.
और ये लेकिन सेनेटर साहिबा मसला ये है कि हमें अपोजिशन की तरफ से सिर्फ बातें सुनने में ही नजर आ रही हैं। मैं इस पर गरीदा, इस पर मुझे आई जस्ट वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर कि उसमें जो है हमने भी आपके कितने सीरियसली बजट के सेशन को लिया। हमारे कट मोशंस तो उससे पहले हमारी रिकमेंडेशंस थी पीएसटीपी के हवाले से, हमारी जो आपके बजट के हवाले से, मुख्तलिफ जो सेक्टर्स के हवाले से, उसमें उन्होंने कोई उनके एक लास्ट बजट में हमने कह दिया था कि एग्रीकल्चर में आप फेल्योर है, आपका नहीं जा रहे। उनके खुद के लोग खड़े हो गए आपके मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, सूबों के हवाले से, जो मालियत के हवाले से। देखें अभी भी आप देख लें कि अपोजिशन ने, खासकर पीपल्स पार्टी ने बड़ी मेहनत की। हम उस पर हमारा फोकस होता है, हमारे पास मुआशी माहिर उस तरह न सही, लेकिन हमारे लोग बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह ही उनकी नजर होती है, वो विजिलेंट होते हैं, उनको पता है कि एक एक रुपए की जो है ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। इसी पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपोजिशन का पहले दिन से और अभी भी यही एतराज और यही शिकवा है कि उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता और पार्लियामान की तौकीर नहीं की जाती हुकूमत की तरफ से। तो why has the national security policy not been put up in parliament in front of the people of Pakistan? इसका सवाल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। Stay with us.